نیوز انسائیڈر کا خاص پروگرام اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ چلیے تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی اور۔ کیا مرکز مراٹھی زبان پر فیڈنویس کے موقف کی تائید کرے گی؟ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کی جانب سے مرکز سے سوال کیا گیا۔ نشیکانت دوبے کے سپریم کورٹ پر دیے گئے بیان پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں ادارے کی سجاوٹ اور ساکھ کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تحور رانا کی جانب سے اپنے اہل خانہ سے بات چیت کرنے کی اجازت کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا۔ مغل روڈ پر ٹریفک کی روانی، حکام نے ہیلتھ نوٹس کو الرٹ کر دیا، ساتھ ہی ملازمین کی چھٹیوں کو کیا گیا منسوخ۔ مرحوم مفتی صاحب کے بارے میں ایس دولت کا تبصرہ اہم نہیں، لیکن فاروق عبداللہ کے بارے میں ان کے تبصرے کافی سنجیدہ ہیں، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا بیان۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ آج بھی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے معطل رہے گا، حکام کی جانب سے اطلاع دی گئی۔ حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کی جانب سے کشمیر یوتھ ونگ کو تحلیل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے رامبن میں بدترین متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا گیا اور جامع امدادی اقدامات کی یقین دہانی کروائی گئی۔ ڈیفکام جموں اور آئی جی پی جموں کی جانب سے رامبن کے سیلاب زدہ علاقے کا دورہ کر بحالی اور امدادی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اسپیشل سمری ریویژن 2025 کے بعد ہی حتمی انتخاباتی فہرستیں شائع ہوں گی، الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے بتایا گیا۔ ڈیلٹا فورسز کی سوہاندہ بٹالین کی جانب سے ڈورا کے خلینی میں اگنی پتھ آگاہی اسکیم پر ایک لیکچر کا اختتام کیا گیا۔ پوپ فرانسس کے انتقال پر ہندوستان نے 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کر دیا۔ اور اتنے سالوں میں پہلی بار روس کی جانب سے یوکرین کے ساتھ براہ راست امن مذاکرات کے لیے حامی بھری گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مہاراشٹر حکومت کے اس دعوے کے بعد کہ ریاست میں صرف مراٹھی ہی لازمی ہے، تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کی جانب سے پیر کو پوچھا گیا کہ مرکزی حکومت تمام ریاستوں کو ایک واضح ہدایات جاری کرے جس کی تصدیق کرتے ہوئے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو تیسری زبان کی لازمی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ مہاراشٹر حکومت کے رد عمل کے جواب میں ایم کے اسٹالن نے کہا کہ یہ غیر ہندی بولنے والی ریاستوں پر ہندی کو مسلط کرنے کے خلاف وسیع عوامی مذمت پر ان کی گھبراہٹ کا واضح اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مرکزی حکومت مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے اس بات کے موقف کی باضابطہ طور پر تائید کرتی ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی کے تحت مہاراشٹر میں مراٹھی کے علاوہ کوئی اور تیسری زبان لازمی نہیں رہے گی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ادارے کی مخصوص سجاوٹ اور ساکھ کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا گیا جب انہیں بتایا گیا کہ ایک رکن پارلیمنٹ کی جانب سے چیف جسٹس آف انڈیا کے خلاف تبصرہ کیا گیا ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ نے یہ مشاہدہ کیا ہے اس وقت کیا جبکہ عرضی گزار وکیل وشال تیواری کی جانب سے وقف قانون میں ترمیم کے بعد مغربی بنگال کے مرشید آباد ضلع میں تشدد کے دوران نفرت انگیز تقاریب پر اپنی پل کو واپس لینے کی اجازت مانگی تھی۔ تیواری جھارکھنڈ کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے کے بیانات کا حوالہ دے رہے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کو قانون بنانا ہے تو پھر پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کو بند کر دینا چاہیے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کو بھی ہندوستان میں خانہ جنگوں کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اسٹار ہاسپٹل سنت نگر بائی پاس سری نگر آپ کے ساتھ۔ زندگی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور اس فرض کو نبھاتے ہیں ہم ذمہ داری کے ساتھ۔ بیماری سے شفا تک کا سفر ہوگا اور بھی آسان۔ اسٹار ہاسپٹل، جہاں آپ کو ملیں گی تمام تر سہولیات، ایک ہی چھت کے نیچے ماہر ڈاکٹر، اعلیٰ تعلیم یافتہ سٹاف، وہی بہترین ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ دیر نہ کریں، آج ہی رابطہ کریں۔ اسٹار ہاسپٹل سنت نگر بائی پاس میں ملیں گی آپ کو ماہر ڈاکٹرز جن میں گائنیکالوجسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ، ڈرمیٹولوجسٹ، آرتھوپیڈکس، نیورولوجسٹ، کارڈیولوجسٹ، ای این ٹی کے ساتھ فزیشین اور بھی کئی ساری سہولیات جدید آلات سے آراستہ۔ اسٹار ہاسپٹل سنت نگر سری نگر، آج ہی رابطہ کریں۔ ہمارے نمبر ہیں 019424365338
वहीं दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। जेल में बंद 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहव्वुर राना ने अपने अहल खाना से बात करने की इजाज़त के लिए अदालत से रुजू किया है। राना को 19 अप्रैल को अपने वकील के जरिए खसूसी जज हरदीप कौर के सामने अर्जी दाखिल की गई है, जिन्होंने पीर को NIA को 23 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने की हिदायत की वजह बताई है। भारी ट्रैफिक के बहाव की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकाम ने कश्मीर जाने वाले ट्रैफिक को मुगल रोड की तरफ मोड़ दिया है। महकमा सेहत ने राजौरी और पुंछ के जुड़वा अजला में अपने तमाम इदारों और अफरादी कुव्वत के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और जचगी की छुट्टियों के अलावा सेहत के मुलाजमीन की हर किस्म की छुट्टियां अगले अहकाम तक के लिए मनसूख कर दी गई हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी डॉक्टर मनोहर लाल राणा और चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ डॉक्टर परवेज अहमद खान ने अपने दफातर से मुतल्लिका अहकाम जारी करते हुए तमाम अजला में सेहत के इदारों और अफरादी कुव्वत को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि रॉ के साबिक सरबराह AS दुल्लत का आर्टिकल 370 की मनसूखी के बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में बयान एक बहुत ही संगीन मसला था, जबकि AS दुल्लत के झूठे मसाइल के बारे में कुछ खास तबसरे थे। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि AS दुल्लत के रिमार्क्स की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला BJP की जानिब से आर्टिकल 370 को मनसूख करने से पहले उन्हें एतमाद में न लेने से परेशान थे और फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था कि अगर वो जम्मू कश्मीर की असेंबली के जरिए इस मकसद को हासिल करने के लिए मरकज की मदद कर सकते थे, ये फितरत में बहुत संजीदा है। उन्होंने कहा कि AS दुल्लत जैसा कि सब जानते थे फारूक साहब के बेहद करीबी थे। उन्होंने फारूक साहब के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के रिमार्क्स नहीं किए हैं, बल्कि उन्होंने ऐसा बयान BJP और फारूक साहब के दरमियान फासलों को खत्म करने के लिए किए हैं। उन्होंने कहा कि दुल्लत साहब उन्हें और BJP को करीब लाना चाहते हैं, लेकिन जहां तक उमर साहब के मुफ्ती मोहम्मद सैयद के बारे में बयान किए गए हैं वो बहुत ही झूठे मसाइल हैं। आर्टिकल 370 के बारे में फारूक साहब का बयान उतना झूठा मसाइल नहीं था। ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स जम्मू और कश्मीर की जानिब से एक ट्रैफिक प्लान और एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लोगों को कल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफर न करने का मशवरा दिया गया है, क्योंकि रामबन के सैलाब ज़दा इलाके में बहाली का काम अभी भी जारी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कल गाड़ियों की नकलो हरकत जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुअत्तल रहेगी, क्योंकि बहाली का काम आज मुकम्मल नहीं हो सका है। लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर उस वक्त तक सफ़र ना करें जब तक कि बहाली का काम मुकम्मल नहीं हो जाता और सतह ट्रैफिक के काबिल हो जाता है। हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पीर के रोज़ अपने यूथ विंग के कश्मीर चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया है, जिसका मकसद नए चेहरों को सामने लाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ऐलान किया गया है कि जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मंजूरी के मुताबिक कश्मीर में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबाई कमेटी, जोनल कमेटियाँ, ज़िली कमेटी और ब्लॉक कमेटियों को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। पार्टी की जानिब से कहा गया है कि MLA हजरत बल सलमान अली सागर को फिलहाल यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंचार्ज सदर नामजद किया गया है। पार्टी ने एक एक्सपोस्ट में भी कहा है कि मज़कूरा बालाई अहकामात के नतीजे में मिस्टर सलमान सागर को इंचार्ज सदर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के तौर पर नामजद किया गया है, जो कि सूबाई कश्मीर के दर्ज ज़िला सीनियर लीडरों से मशवरा करेंगे और नए सूबाई सदर की तकरीरी के लिए अपनी सिफारिश के साथ आएंगे। रामबन जिले में बादल फटने से होने वाले तबाही पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ज़ाती तौर पर ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुतासिरा इलाकों का दौरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर रामबन और सीनियर सिविल और पुलिस हुकाम के साथ वज़ीर आला ने श्रीनगर से सड़क के जरिए सफ़र किया था ताकि सबसे ज़्यादा मुतासिरा गाँव मारोक पहुँचा जा सके। अपनी हुकूमत की गहरी तशवीश और अज़म का मुजाहिरा करते हुए वज़ीर आला ने केला मोड़ तक पहुँचने के लिए नामवार इलाके से कई किलोमीटर पैदल भी सफ़र किया, जहां बादल फटने से सैलाब आया था, जिससे तबाही का रास्ता निकल गया था। मकामी बाशिंदों और ज़िला इंतज़ामिया के अहदेदारों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला को नुकसानात के पैमाने और जारी बचाव और इमदादी कार्रवाइयों की पेशरफ्त से आगाह किया गया। उन्होंने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन
से दिली ताज़ियत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि हुकूमत इस सानहा के मुतासरीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि तबाही का पैमाना बहुत परेशान कुन है। हमारी इंतजामिया ज़मीन पर है, हर मुतासिरा खानदान की हिफाजत, राहत और बहाली को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत कर रही है। पहली बात ये कि हमें जो हमारी ये हाईवे है इसको फौरी तौर हमें रिस्टोर करना है। आपने खुद देखा यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ जो है पसी के नीचे दब गई हैं। ये सारा रास्ता जो है ये अब टूट चुका है। इसकी अलाइनमेंट हमें चेंज करनी होगी। हमें ये मलबा जो है ये उठाना होगा। इसके नीचे जो गाड़ियाँ दबी हैं जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता उनको हटाना होगा। जिन गाड़ियों को यहाँ से निकाल के इस्तेमाल किया जा सकता है उनको सही सलामत यहाँ से निकालना होगा और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये हो। जहाँ पे हम खड़े हैं मौके पे फ़िलहाल ये हमारे लिए सबसे मुश्किल जगह है और अफसरों का मानना है कि हमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं ये हिस्सा क्लियर करने में। बाकी जो है हम 24 घंटे के अंदर अंदर क्लियर कर लेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ये हो जाए। दूर दराज इलाकों में भी नुकसान हुआ है, घर टूटे हैं, गुजर बकरवाल तबके का नुकसान हुआ है सर, घर टूटे हैं सर, तो मजबूरी तौर पे इंतजामिया पैकेज सर नेशनल डिजास्टर्स को डिक्लेयर किया जा सकता है। नेशनल डिजास्टर तो ये है नहीं ना, ये लोकलाइज्ड डिजास्टर है लेकिन डिजास्टर है और इस डिजास्टर में जितना इनको हमें मुआवजा देना होगा रीबिल्डिंग के लिए वो हम दे देंगे। फिलहाल तो एडमिनिस्ट्रेशन से कहा हुआ है कि नुकसान का वो जायज़ा लेके उसका असेसमेंट करके हमें दे दें। इमीडिएट रिलीफ हम उनको पहुंचा देंगे और उसके बाद एक ख़ास पैकेज जो है उसके लिए हम एक तो खुद इंतज़ाम करेंगे और दूसरा हम मरकज़ से बात कर लेंगे। जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे ये नुकसान हुआ है उनका जायज़ा मैं खुद मौसम ने इजाज़त दी तो मैं कल खुद जाके वहाँ मौके पे देख लूँगा और फिर अपने अफसरों से कल रामबन में मीटिंग कर आपको लूँगा। कल का शेड्यूल क्या, कहाँ कहाँ जा रहे हैं ताकि लोग आपसे मिल पाए सर, अपनी फरियाद सुना सके? जहाँ जहाँ मैं पहुँच पाया मैं पहुँच पाऊँगा। थैंक यू सो मच सर। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू भीमसेन टूटी की जानिब से कुदरती आफत से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए रामबन जिले के सैलाब से मुतासिर और लैंडस्लाइडिंग से मुतासिरा इलाकों का एक वसी पैमाने पर दौरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी, एसएसपी ट्रैफिक कौमी शाहरा राजा आदिल हामद के हमवार, डिविजनल कमिश्नर और आईजीपी जम्मू ने सेरी, बोली बाजार, मेन बाजार रामबन, हायर सेकेंडरी स्कूल एरिया और नवी बस्ती समेत कई शदीद मुतासिरा मकामात का दौरा किया। डिविजनल कमिश्नर ने और आईजीपी ने मुतासिरा खानदानों से बातचीत की और जारी रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के कामों का खुद से जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खसूसी समरी नज़रसानी मुकम्मल करने के बाद हतमी इंतखाबात फहरिस्तों में तसादात या बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि कमीशन पूरे अमल में शफाफियत पर तवज्जो मरकूज करते हुए आज़दाना और हमवार इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। कौम की तामीर के ताइन हिंदुस्तानी फौज के वाबस्तगी के एक हिस्से के तौर पर डेल्टा फोर्सेस के सुहांदा बटालियन की जानिब से 21 अप्रैल 2025 को खिलैनी डोडा में अग्निपथ आगाही स्कीम पर एक लेक्चर का एहतमाम किया गया। इस इकदाम का मकसद अग्निपथ स्कीम के फ़वाइद को ज़ाहिर करना और नौजवानों को इंडियन आर्मी में मुस्तकबिल के बारे में बाइख्तियार फैसला करने के लिए अपने कैरियर को आगे बढ़ाने की तरगीब देना था। इस तकरीब में डोडा ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों से कुल 25 शराकाई की जानिब से शिरकत की गई थी। सेशन ने अग्निपथ स्कीम के जरिए पेश करदा तब्दीली के मौक़ों को वाज़े तौर पर उजागर किया, जिसमें हबलवतनी की आदत और हुनर की तरक्की को फ़रोग़ दिया गया था। वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी करदा एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत हिंद की जानिब से पीर को पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद एहतराम के तौर पर 3 रोज़ा सरकारी सोग का ऐलान कर दिया गया है। 22 और 23 अप्रैल को मुल्क भर में सोग मनाया जाएगा और फिर पोप की आखिरी रसूमात के दिन भी इस सोग को बरकरार रखा जाएगा। वाज़ेह रहे तो पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में पीर को वेटिकन में अपनी रिहाइशगाह में इंतकाल कर चुके हैं। वज़ारत दाखिला की जानिब से अपने नोटिफिकेशन में कहा गया कि होली सी के सुप्रीम पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर एहतराम के निशान के तौर पर 3 रोज़ा सरकारी सोग मनाया जाएगा। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अमन कायम करने के लिए आमदगी जाहिर करने के लिए वाशिंगटन के दबाव में पीर को कैफ के साथ बरसों में पहली बार 2 तरफा मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की है और कहा है कि वो 1 रोज़ा ईस्टर जंगबंदी के बाद मज़ीद जंगबंदी के लिए भी तैयार हैं।
اس کے علاوہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ کیف بدھ کو امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے ملاقات کرنے کے لیے ایک وفد لندن بھیج رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔